record the lecture. I'll share the screen. Okay. Value of supply in common terms is nothing but the amount paid by the recipient of supply to the supplier as consideration for supply. So value of supply is nothing but the value on which tax is going to be calculated. Okay. Value of supply is the amount upon which tax is levied and collected. The understanding of value of supply is required to be ascertained for correct levy of taxes. So you have to understand the correct amount of value so that you can calculate the amount of tax. Okay. Now, assessable value to be transaction value. Normally, what is the value of supply जो आप pay कर रहे हैं, जो dealer receive कर रहा है, that is transaction value. Transaction means buying and selling. ठीक है. Assessable value to be transaction value. The value of supply of goods or services or both shall be the transaction value. So जिस value पे आप purchase करेंगे, जिस value पे dealer sale करेगा, जो value आप pay करेंगे किसको, dealer को, that will be the value of supply, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both, where the supplier and the recipient of supply are not related. The price is the sole consideration. Now I will give you the example. Okay. Okay. Dealer Mr. A, है ना? And we have buyer is A and buyer this is B. Okay, so price, salary is common. Okay, so price charged by dealer A to buyer or recipient Mrs. A for a laptop is rupees 10,000, whereas to B it is 40,000. What can be the reason? क्या reason है? He is charging different prices. Tell me the reason, guys. Don't sleep. This is not the time to sleep. Maybe he's selling in installments to Mrs. A. और कोई idea? Anything else? अरे बोलो. Sir, same product or different brand? Same product, same laptop, same design, same configuration, Different branch. model, same branch. Everything is same. Dealer is same. Dealer same है तो obviously समझो ना. Place of location, sir. हाँ? Maybe Mrs. B is outside India. Okay. Okay. चलो. वैसे कोई लॉजिक नहीं था पूछने का, बट मैं भी फिर भी बता देता हूँ. मिस्टर ए जो है वो हस्बैंड है मिसेस ए का, बराबर ना? दिख रहा है तुम लोग को? मिस्टर ए एंड मिसेस ए, ये वाइफ है किसकी? मिस्टर ए की, है ना? मिस्टर ए मिसेस ए, लेकिन मिसेस बी जो है वो मिस्टर बी की वाइफ होगी ना, ठीक है? नाउ टेल मी, अब वो अपनी वाइफ को उतना ही चार्ज करेगा जितना बाकी लोगों को चार्ज करते हैं? अरे बोलो, आपका रिलेटिव है, आप उसको उतना ही चार्ज करेंगे जितना आप दूसरों को चार्ज करते हैं? कम चार्ज करेंगे. हाँ, वैसे तो मैं पहचान वालों के पास जाता नहीं हूँ क्योंकि वो ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है? लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता. व्हेन दे आर रिलेटेड भैया, व्हेन दे आर रिलेटेड देयर इज अ प्रॉब्लम.
when they are related there is a problem. Price can easily be adjusted. Price can easily be adjusted when they are related. ठीक है. So गवर्नमेंट ने बोला भाई आपके बीच में क्या रिलेशन है हम लोग को लेना देना नहीं है. When you are related, ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि भाई मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है. बिकॉज इफ यू गाइज आर रिलेटेड देन देयर इज अ प्रॉब्लम. आप प्राइस को इजीली मैनिपुलेट कर पाओगे. ठीक है, यू विल बी इन अ पोजीशन टू मैनिपुलेट द प्राइस एंड इट इज नॉट हार्मफुल आल्सो. मिस्टर ए बोलता है यार मेरी वाइफ के लिए लैपटॉप के लिए पैसा तो मुझे ही देना है. ठीक है, तो मैं बिल में 10,000 लिखूं या 20,000 लिखूं या 40,000 लिखूं, क्या फर्क पड़ता है. आई विल राइट 10,000. क्यों? क्योंकि मैं 10,000 के ऊपर टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को. ठीक है, अब मुझे बताओ इज इट फेयर? गवर्नमेंट को टैक्स 10,000 पे जाएगा ऑल्दो द वैल्यू ऑफ द गुड इज 50,000. बताइए, हम तो बैठे हैं भाई, गवर्नमेंट तो बैठी है, बनाओ जितना बना सकते हो. चलेगा? छोड़ेगी नहीं, वो मार्केट प्राइस पे लेगी. वही. ठीक है भैया, तुम जब अपने रिलेटिव से डील करोगे, आप डील करो भले 10,000 में बेचो, 10 रुपए में बेचो, वी आर नॉट कंसर्न. ठीक है, बट हमें तो टैक्स ओरिजिनल अमाउंट पे चाहिए. ठीक है, सो व्हेन दे आर रिलेटेड, सो वी आर नॉट गोइंग टू सी द ट्रांजैक्शन वैल्यू. इस केस में हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स ले लेंगे क्योंकि यू आर नॉट रिलेटेड. यहाँ पर नहीं लेंगे बिकॉज यू गाइज आर रिलेटेड. हस्बैंड एंड वाइफ है भाई, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, सो ये बोल रहा है कि नॉर्मली द प्राइस इज द प्राइस ओनली, ट्रांजैक्शन वैल्यू ओनली, बट व्हेन दे आर रिलेटेड उस केसेस में हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे और वी विल कंसिडर अदर फैक्टर्स आल्सो. ठीक है, एंड अगर जेन्युइनली वो भी ऐसे ही चार्ज कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना. वो जितना लोगों से चार्ज करता है उतना उससे भी चार्ज कर रहा है, तो देयर इज नो एनी इशू. तब तो वो वही प्राइस पे ले रहा है. ठीक है, तब तो गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं होगा यहाँ पे. बट व्हेन दे आर रिलेटेड वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द ट्रांजैक्शन वैल्यू. वी विल फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू और सेम प्रोडक्ट का कितना होता है, सिमिलर प्रोडक्ट का कितना होता है, लाइक दैट. या वो जनरली कितना चार्ज करता है दूसरे बायर से. दैट विल बी द एडिशनल circumstances. But when these guys are related and the buyer and the supplier and the recipient is related, ये एक एक्सेप्शन है. आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को नहीं ले सकते. मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस व्हाट, जिसके ऊपर आप परचेस कर रहे हैं या जिसके ऊपर वो सेल कर रहा है. ठीक है, आप परचेस कर रहे हैं, वो सेल कर रहा है. ठीक है, अभी ऐसा तो नहीं कि आप डिफरेंट प्राइस देंगे उसको डिफरेंट रिसीव होगा. तो ट्रांजैक्शन वैल्यू वही होती है, जो रेसिपिएंट के लिए जो पेमेंट होता है वो सप्लायर के लिए रिसिप्ट होता है. ठीक है, सो व्हेन दे आर रिलेटेड आप नहीं चार्ज करेंगे. अच्छा, व्हेन प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. ठीक है, दे आर नॉट रिलेटेड, दे शुड नॉट बी रिलेटेड. ठीक है, अगर रिलेटेड है तो हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लेंगे. ठीक है, ये बोल रहा है ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि दे शुड नॉट बी रिलेटेड एंड प्राइस शुड बी दी ओनली कंसिडरेशन. ओके, तो अभी इधर पे देते हैं. ये नॉर्मली हर किसी को 50,000 ही चार्ज करता है. मिस्टर बी को वो बोलता है कि मैं आपको, दे आर नॉट रिलेटेड नाउ. ठीक है, दे आर नॉट रिलेटेड नाउ. नाउ द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट. उसने बोला कि यू डू वन थिंग, कि आप प्रिंसिपल हैं कॉलेज की. ठीक है, और आप क्या करें, मेरी बच्चे की फीस माफ कर दो. 40,000 की जो फीस है वो आप माफ कर दीजिए. ठीक है, और ये बोलता है, डीलर ए बोलता है, ये जो है ये इसकी बच्ची की प्रिंसिपल या जो भी है ऐसा रिलेटेड एक पोजीशन जहां पर वो मैनिपुलेट कर सकती चीजों को. ठीक है, नाउ दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं आपको ये लैपटॉप जो है वो 10,000 रुपीज में दे देता हूँ. आप जो 40,000 की जो फीस है मेरे बच्चे की, उसको आप वेव ऑफ कर दो. ठीक है, बिल में मैं लिख दूंगा 10,000. ठीक है, बिल में आपको बना के दे रहा हूँ 10,000. 10,000 पे जीएसटी जाएगा. ठीक है, 40,000 जो है वो आप मेरे बच्चे की फीस माफ कर देना. नाउ टेल मी, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 10,000. 10,000 में बेचा है. ठीक है, क्या 10,000 के अलावा भी उसने कुछ लिया है? बताइए.
बोलो यस और नो। यार मेरे को सुनाई नहीं देता आजकल ज्यादा, क्यों ऐसे? या आप लोग बोलते नहीं? दो सर ही। बोल रहे हैं सर। अच्छा बोल रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों ऐसे? नहीं नहीं, बोल रहे हैं। अच्छा, यू आर वेटिंग फॉर इट, ओके नो प्रॉब्लम। नाउ टेल मी कि 10,000 उसने पे किया मिसेस बी ने, जो कि प्रिंसिपल है, उसने 10,000 पे किया, और 40,000 शी विल एडजस्ट विद द प्राइस फीस ऑफ द डॉटर और सन ऑफ मिस्टर ए। सो 10,000 के अलावा भी कुछ पे किया है क्या मिस्टर मिसेस बी ने? और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि प्राइस ही पे किया है, प्राइस के अलावा कुछ ना पे किया हो। ठीक है, चलो अब दूसरा भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो है, इसने बोल दिया कि 10,000 में मैं आपको लैपटॉप दे देता हूँ, आप 40,000 का ये जो है प्रिंसिपल नहीं है, अब मुझे एडवर्टाइजमेंट करवा के देता हूँ। आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट मुझे करना होता है 40,000 का, आप वो कर देना, 10,000 में आप लैपटॉप दे दो मुझे। ठीक है, मतलब 10,000 में मैं आपको लैपटॉप दे देता हूँ, उसके अलावा 40,000 जो है वो हम लोग एडजस्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट प्राइस से। इससे ये होगा कि 10,000 पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, 40,000 तो कंसिडर होगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो पे नहीं किया मुझे, इनवॉइस पे भी नहीं लिखा है। ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट मेरा जो है वो करवा देना 40,000 जिसका कॉस्ट होता है। ठीक है, नाउ टेल मी कि ये जो बंदी है, ये प्राइस जो 10,000 है उसके अलावा भी कोई कंसिडरेशन पे कर रही है क्या? अरे अब तो 40,000 बोल का दो। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कर रही है ना? सो प्राइस शुड बी दी ओनली कंसिडरेशन, ऐसा ये बोल रहा है। अगर प्राइस कंसिडरेशन नहीं है तो जो एडिशनल चीज आप दे रहे हो ना, ये 10,000 के अलावा, इसको भी हम ऐड कर देंगे और कितना बना देंगे उसको 3,000, और इसके ऊपर टैक्स लेंगे। ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है? 10,000। एडिशनल क्या किया उसने उसके लिए? पैसे नहीं दिए, कुछ काम किया उसके लिए। प्राइस इज नॉट दी सोल कंसिडरेशन, प्राइस के अलावा भी कुछ दिया है। ठीक है, वो भी ऐड कर दो और उसके ऊपर जीएसटी हम लेंगे। ठीक है, तो दो केसेस में गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे नहीं लेती। कौन से दो केसेस? अगर दोनों रिलेटेड है तो, ठीक है, दोनों रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तब आप क्या करेंगे, उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडर करेंगे। प्राइस के अलावा कुछ और ना लिया होना चाहिए, प्राइस शुड बी दी ओनली कंसिडरेशन। सोल कंसिडरेशन मतलब, सोल मतलब क्या, अकेला कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? प्राइस होना चाहिए। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होनी चाहिए एक ही कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं दिया होना चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ दिया है तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू में जो और जो चीज उसने दिया होगा कुछ, वो भी प्लस करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो दो जगह पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा व्हेन दे आर रिलेटेड, और अगर प्राइस के अलावा भी कुछ वो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। दो जगह पे आप क्या कर सकते हैं, प्राइस या ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लेंगे। एक तो दे आर, इफ दे आर रिलेटेड, और दूसरा प्राइस के अलावा भी दोनों के बीच में कुछ तो एडजस्टमेंट हो रहा है, खिचड़ी है कहीं पे, तो उस केसेस में भी आप नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए ऑब्वियसली भाई प्राइस ज्यादा होना चाहिए, प्राइस कम क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, अननेसेसरी प्राइस क्यों कम कर रहे हो? अगर किसी केसेस में आप वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं कर पाए, मालूम नहीं कर पाए, तो हम लोग 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या भी जो भी इसकी कॉस्ट होगी उसका 110% ले लेंगे। इफ इन केस आप उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मालूम कर पाए, तो रूल नंबर 30 बोलता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको उसका 110% ले लो कॉस्ट का। ठीक है, इतना समझ में आ गया? पहले तो क्या होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द प्राइस पेड बाय द बायर टू द सेलर, रेसिपिएंट टू द डीलर। ठीक है, रेसिपिएंट टू द सप्लायर। In what cases we are not going to consider the transaction value? When they are related, ठीक है, and price is not the sole consideration। इस केसेस में आप क्या करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू को। ठीक है, and if you are not able to find out the value of supply, we are going to take it 110% of the cost of production, 110% of the cost। okay, अब ये इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं।
ध्यान से, ठीक है। अब ये जो है ये अदर देन दी कॉस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आप लेंगे और क्या क्या चीजें आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो सारे एक्सपेंसेस लेने वाले हैं हम लोग, जो भी सेलर ने उसके ऊपर किया, सारी कॉस्ट, ठीक है। सब सब्सिडी भी लेंगे, ठीक है। सब्सिडी अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, भैया गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी है, उसके ऊपर वो टैक्सेस कलेक्ट करेगी क्या? नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ने ही सब्सिडी दी है और गवर्नमेंट ही आपको टैक्स कलेक्ट करेगी उसके ऊपर, नहीं चलेगा भाई। प्राइस जो है वो सब्सिडी लेंगे प्राइस में। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी? Any consideration given by the government? कंसेशन, है ना, कंसेशन की तरह आप ले सकते हैं इसको। क्या होता है कंसेशन की वजह से बेटा? कंसेशन की वजह से क्या होगा, आपका प्राइस कम हो जाएगा, है ना। एक्सपोर्ट सब्सिडी वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है। सब्सिडी की वजह से आपका क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाता है। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, ठीक है। अब वो कम हो गया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलती है जो सब्सिडी रिसीव किया ना आपने, उसकी वजह से आपका कॉस्ट कम हो गया है, प्राइस कम हो गया है, तो उसके ऊपर जीएसटी हम लोग को नहीं मिल रहा प्रॉपरली, आप उसको वापस से ऐड करो सब्सिडी को, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट खुद सब्सिडी दे रही है तो वो खुद नहीं बोलेगी कि उसको ऐड करो। सो अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, इसके अलावा जो भी सब्सिडी रहेगी वो आप ऐड कर सकते हैं। अभी एक बेवकूफ ग्रुप ऑफ जो गधे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सब्सिडी को डिस्काउंट की तरह माइनस कर देते हैं। व्हाट इज द रिलेशन? सब्सिडी इज नॉट अ डिस्काउंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब्सिडी एंड डिस्काउंट, ठीक है। सब्सिडी इज एडेड, क्यों? क्योंकि उसका जो प्रीवियस इफेक्ट है वो उसने उसको प्राइस को कम कर दिया होता है सब्सिडी ने, सब्सिडी की वजह से प्राइस कम हो जाता है, आपको उसको वापस से ऐड करना है, ठीक है। ध्यान रहे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। जो भी टैक्सेस ड्यूटीज आपने पे किया है सब ऐड करेंगे। अमाउंट बॉर्न बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ठीक है। तो सप्लायर ने तो गुड्स दे दिया, उसको बेच दिया, उसके बाद रेसिपिएंट कोई भी एक्सपेंसेस करे वो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अभी एक बात बताओ, आप गए शॉप से, आपने गुड्स ले लिया, गुड्स की वैल्यू थी 100 के ऊपर जीएसटी सप्लायर ने कलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद तो आपको नहीं पता उसके ऊपर क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बंदा हो सकता है ट्रैवलिंग करके जाएगा जहां तक भी जा रहा है, ठीक है। तो सेलर ने जब गुड्स हैंडओवर कर दिया रेसिपिएंट को, उसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन अगर वो एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर है तभी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो रेसिपिएंट कोई भी एक्सपेंसेस करेगा इट शुड बी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, लेकिन सप्लायर जो भी एक्सपेंसेस करेगा सब लेना है। रेसिपिएंट जो एक्सपेंसेस करेगा, जो बायर एक्सपेंसेस करेगा, इट शुड बी ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, ये याद रखो, ठीक है। तो रेसिपिएंट के एक्सपेंसेस आपको नहीं लेने हैं, रेसिपिएंट के एक्सपेंसेस आपको नहीं लेने हैं। अभी मैं खरीद लिया गुड्स, उसके बाद मैं कुछ भी करूँ गुड्स के साथ में, कितना भी डिजाइन करूँ, कितना भी उसके ऊपर चार्जेस हो, कितना भी एक्सपेंसेस हो, उससे सेलर को क्या लेना देना, उसके ऊपर जीएसटी क्यों पे करेगा वो, ठीक है। तो आप जो जो अमाउंट ऐड करेंगे, अमाउंट ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी, उस वैल्यू पे जीएसटी पे होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। तो जो एक्सपेंसेस बायर ने किए हुए हैं, जो एक्सपेंसेस रेसिपिएंट ने किया है, वो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको पहले से पता था, रेसिपिएंट को आपने बोल दिया, ठीक है, इसका कैरेज पे कर देना, मैं लिख देता हूँ, मतलब मैं प्राइस में जो है इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइस, यू डोंट वरी, आप जो है वो ले लो, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो है वो आपको लेने हैं जो ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर होंगे, ठीक है। लेकिन रेसिपिएंट के कोई भी एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। अभी नीचे पढ़ लो क्या क्या इग्नोर करना है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी इग्नोर करो, ठीक है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस। बताइए बेटा क्या कैलकुलेट करने वाले हैं आप यहाँ पर? जीएसटी कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। रोहित म्यूट करो। हाँ, तो क्या आप कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा? आप आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी कुछ तो आप कैलकुलेट करने वाले हैं ना, जीएसटी कैलकुलेट करने वाले हैं वैल्यू के ऊपर। तो अगर वो एडेड होगा तो उसके ऊपर जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको याद रखना है कि अगर उसके अंदर जीएसटी है तो पहले निकालो, उसके बाद उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या नहीं लेंगे? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। सी टैक्सेस लेने वाले हैं हम लोग, टैक्सेस हम लोग लेने वाले हैं, ऐड करेंगे, लेकिन कौन से टैक्सेस नहीं लेंगे? जीएसटी नहीं लेंगे, क्योंकि जीएसटी तो कैलकुलेट करना है।
तो जीएसटी कैसे ले सकते हो आप? तो जीएसटी कॉम्पनसेशन, यूटी जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब हम लोग नहीं लेने वाले। एक्सपेंसेस बॉर्न बाय रेसिपिएंट हम लोग नहीं लेने वाले हैं, अगर उसको उसका अंदाजा अगर सप्लायर को नहीं है तो। ठीक है, सप्लायर को पता है, सप्लायर के बिहाफ पे हुआ है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, सप्लायर जीएसटी उसके ऊपर निकालने वाला है बेटा, तो सप्लायर के एक्सपेंसेस आपको लेना है, रेसिपिएंट के नहीं। लेकिन अगर रेसिपिएंट ने एक्सपेंसेस किया ऑन द डायरेक्शन ऑफ सप्लायर, तब तो एक्सपेंसेस सप्लायर का माना जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या कर देना, डिस्काउंट को डिडक्ट कर देना है, अगर डिडक्ट नहीं है तो डिडक्ट कर देना है। सिंपल फॉर्मूला इज दिस। ये ऐड करने हैं, ये आपको एक्सक्लूड करना है, अगर है तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, नहीं है तो आप इग्नोर करो इसको। ठीक है, और एंड में डिस्काउंट को क्या कर देना है, आपको डिडक्ट कर देना है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ओके, मिस कृतिका परचेज्ड अ कार वर्थ ₹5 लाख। तो इसको आंसर कैसे करते हैं बेटा, एक शीट लेते हैं नीचे, ये होगा आपका पर्टिकुलर, ये होगा आपका माइनर। यहाँ पे आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उसके ऊपर अगर जीएसटी कैलकुलेट करना है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, मैं यहाँ पे से वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको बता रहा हूँ, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई करनी है। ओके, मिसेस कृतिका परचेस अ कार वर्थ ₹5 लाख प्लस जीएसटी है उसके ऊपर, तो जीएसटी आप इग्नोर कर दो, जीएसटी मत ले लेना उसका, तो प्राइस इज 5 लाख। ओके, Mr. Amol also received 40,000 towards car accessory which were not included in the price. So additional car accessories का भी था, ये तो आपने कॉस्ट में इंक्लूड ही नहीं किया, इसका भी पैसा मिला था आपको, इसके ऊपर भी जीएसटी जाएगा। A discount of 15,000 was given by Amol, तो डिस्काउंट जो है वो एंड में हम लोग लेस कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एट द एंड आपको डिस्काउंट लेस कर देना है, सो इट इज 15,000। ओके, was given by Amol to Miss Kritika at the time of sale of car. Mr. Amol hired Mr. Kiran for delivering the car to Miss Kritika. देखो अमोल जो है, ठीक है, अमोल जो है सेलर है, उसने किरण को हायर किया है, ठीक है, वो डिलीवरी बॉय, ठीक है, मिस्टर किरण, और उसने क्या किया, डिलीवर करेगा किधर पे, कृतिका को डिलीवर करेगा। 20,000 का अमाउंट जो है वो पे किया है। नाउ ये पूरे क्वेश्चन में यही एक पार्ट था बताना आपको कि ये 20,000 जो है ये भी ऐड होगा क्या। पहली बार तो ये एक्सपेंसेस किसका है पहले वो देखो। ठीक है, मिस्टर अमोल ने हायर किया मिस्टर किरण को डिलीवर करने के लिए कृतिका को। मुझे बताओ ये 20,000 जो है पेड बाय कृतिका, पे कौन कर रहा है, कृतिका पे कर रही है किरण को, Buyer ने बायर, pay किया। बायर ने पे किया है ये एक्सपेंसेस। लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अमूल के साथ में हुआ था क्या कि ये जो है आप पे कर देना, या फिर इसका अंदाजा जो है वो अमूल को है क्या, ये ऑन बिहाफ ऑफ अमूल है या नहीं है, ये आपको कंसिडर करना है। अगर रेसिपिएंट का एक्सपेंसेस है तो आप इसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस इसको हायर ही कौन ने किया था, इसको सप्लायर ने ही हायर किया था बेटा, ये कृतिका ने इसको हायर नहीं किया है, ये कृतिका के एक्सपेंसेस नहीं है, भले वो पे करें लेकिन इट इज ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर ये माना जाएगा। ठीक है, ये अमूल को पता है ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस होना है, और ऑब्वियसली ये जो एक्सपेंसेस करना है, जो अपॉइंट वगैरह भी किसने किया, किरण ने किया है, इट इज ऑन बिहाफ ऑफ दी दिस ट्रांजेक्शन ओनली, तो ये 20,000 को भी आपको ऐड करना है। ठीक है, expenses of Krutika done on behalf of Amol. कितना है 20,000। Now add them, deduct it, this is value of supply। हो गया सर, हो गया सर, इतना ही करना था। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मिस्टर अनुज सप्लाइड, उसकी सेल वैल्यू कितनी है 2,24,000, कुछ एक्सपेंसेस जो है इनकर्ड बाय मिस अर्पिता। अर्पिता कौन है वैसे? Buyer. बायर है, ठीक है। कमीशन है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, फ्रेट है, नीचे कुछ दिया हुआ है, कमीशन एंड फ्रेट वेर पेड ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अनुज, ठीक है। लेकिन कमीशन एंड फ्रेट के बारे में बोला है, इंस्टॉलेशन चार्जेस के बारे में नहीं बोला है। टेल मी, लेंगे? नहीं लेंगे सर इंस्टॉलेशन चार्ज। इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ कमीशन एंड फ्रेट वेर ऑन बिहाफ ऑफ अनुज। सी अर्पिता का एक्सपेंसेस है, बायर का एक्सपेंसेस है, लेकिन बायर का एक्सपेंसेस हम लोग कब लेते हैं? व्हेन इट इज ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। तो सेलर के बिहाफ पे सिर्फ दो एक्सपेंसेस है, तीसरे के बारे में नहीं बोला। अगर होता तो तीसरे के बारे में बोलता, लेकिन वो नहीं बोला है। तो यहाँ पे आपको 2,24,000 लेना। चलो कैलसी भी ले लो फटाफट, बच्चे तो नहीं हो अभी, हर एक चीज बताना पड़ेगा। 2,24,000 उसका प्राइस है, प्लस मैं इंस्टॉलेशन चार्जेस को छोड़ के बाकी सब ले रहा हूँ, 3,700 प्लस 6,000, इट कम्स टू 2,33,700, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे? अ डिस्काउंट ऑफ 5,000 वाज गिवन बाय द अनुज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो डिस्काउंट में माइनस कर देता हूँ, तो इट इज कमिंग टू 2,28,700। करोगे? हाँ सर। ओके, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 28 पे। मिस्टर प्रतीक सोल्ड मशीनरी 6,72,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बाप रे, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, चलेगा क्या? नहीं। है ना, यहाँ देखो रेड में लिखाया है, जीएसटी तो नहीं होना चाहिए उसके अंदर। प्राइस तो मुझे चाहिए, बट जीएसटी निकालने के बाद कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीएसटी कैसे निकालूं मैं इसके ऊपर? इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, 6,72,000 के ऊपर 12% निकालना है, लेकिन 12% नहीं निकाल सकते क्योंकि जीएसटी तो इसके अंदर है ना। तो इंक्लूसिव कैलकुलेशन कभी भी कैसे करना है? नॉर्मली तो हम लोग 6,72,000 इंटू 12% करते हैं नॉर्मली, मतलब आपकी नॉर्मल लाइफ ऐसी है, 12% तो निकाल लो, 6,72,000 पे 12% निकाल लो। लेकिन जब कोई चीज उसके अंदर इंक्लूडेड होती है और तब आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो 12 डिवाइड बाय 112, 12 डिवाइड बाय 112, 12 डिवाइड बाय 112। सर ये 12 क्या है? ये उसका जीएसटी का रेट है। सर 112 कहां से आया? 100 में प्लस कर दिया 12 को, तो 12 डिवाइड बाय 112, सिंपल, जीएसटी निकल गया 72,000। सर 12% निकालेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यस, आप 12% किसके ऊपर निकाल रहे हो? जीएसटी इंक्लूडेड है उसके अंदर, ठीक है। और अगर मुझे वैल्यू मालूम करना है, अगर मुझे वैल्यू मालूम करना है, तो वैल्यू मालूम करना भी बहुत सिंपल है, 6,72,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 112, ठीक है। सर 6,72,000 में से 72,000 माइनस करते तो भी तो हो जाता, हो जाता, क्या प्रॉब्लम है? दिस इज जीएसटी, दिस इज प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। And 6,72,000 is price including GST, है ना। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 6,72,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 112, 6,72,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 112, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। या तो पहले जीएसटी मालूम कर लो, 6,72,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 112। एक बार जीएसटी मालूम हो गया तो निकालना मुश्किल थोड़ी ना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 6,72,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 112 करेंगे तो जीएसटी आपको 72,000 मिलेगा और वो निकाल देना है। तो क्या बचा आपके पास? 6 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 वे चार्ज सेपरेटली, तो ये ले लो आप। सब्सिडी 75,000 फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर एंड सब्सिडी ऑफ 50,000 फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट। दो सब्सिडी दी है बेटा, 75,000 वाला लेंगे एंड हाँ 50,000 वाला नहीं लेंगे। इग्नोर करो, वेरी गुड। तो द प्राइस इज 6 लाख प्लस 10,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस। सब्सिडी जो है वो हम लोग गवर्नमेंट वाली नहीं लेते हैं, तो 75,000 लेंगे। फिर इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ है, वो भी लेना है आपको,
सारे एक्सपेंसेस लेते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लो, इंटरेस्ट भी नॉर्मल कोर्स में ही आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, तो फर्दर मिस्टर प्रतीक चार्ज इंटरेस्ट 7500 फॉर डिले इन पेमेंट, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, अब तो क्या, अगर गवर्नमेंट अगर डिले चार्जेस लेगी, इंटरेस्ट वगैरह लेती है, उसके ऊपर भी जीएसटी है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरेस्ट के ऊपर भले उनको जीएसटी ना लगता हो, लेकिन उसके डिले चार्जेस वगैरह जो होते हैं, चार्जेस वगैरह पे लगता है। ठीक है, तो ध्यान से, ओके, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो 6 लाख प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 7,500, सिंपल। कहाँ गया इसका आंसर, था यहाँ पे। यार मुझे तो आज आपको खाली उसका क्या देना था, इंट्रोडक्शन देना था वैल्यू ऑफ सप्लाई का, दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मैंने ओपन करके रखा होगा बेटा, सी 6,72,000, यहाँ पे 72,000 माइनस कर दिया। ठीक है, अल्टीमेटली सेम है, आप 6 लाख लो, 6,72,000 में से 72,000 माइनस करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्या क्या प्लस किया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस किया, सब्सिडी एसोसिएशन वाली लिया है इन्होंने, और इंटरेस्ट ले लिया, खत्म, ऐड कर लो, 6,92,000 मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्या नहीं लिया, गवर्नमेंट सब्सिडी और जीएसटी, बस। वो तो मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि दोनों चीज नहीं लेते, तो आपने जो तक कैसे लेने की, सब्सिडी लिखाया है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, जीएसटी लिखाया है नहीं लेना है। ठीक है, और उसके अंदर इंक्लूडेड है तो निकालना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सिडी सर आपने एक्सक्लूड क्यों नहीं किया, मतलब निकाला क्यों नहीं बेटा, सब्सिडी इग्नोर करो, सब्सिडी एक्सक्लूड मत करो। सब्सिडी जब उसके अंदर से निकल ही चुकी है पहले से, तो क्यों वापस से निकालोगे आप, दो बार कैसे निकाल सकते हैं। सब्सिडी का मतलब ही होता है सब्सिडी मिला है तो उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, और मत कम करो। ठीक है, बख्श दो उसको, सब्सिडी ऐड होती है, सब्सिडी माइनस नहीं होती। ठीक है, सब्सिडी या तो ऐड होती है या तो इग्नोर होती है, बस। सब्सिडी ऐड कौन सी होती है अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी इग्नोर कौन सी होती है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी इग्नोर होती है। Okay, now this is time for what? This is time for attendance. I hope आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। कुछ अगर आपको डाउट है, थोड़ा फास्ट गए अगर हम लोग, तो आप पूछ लो, कोई डाउट है पूछ लो, कोई क्वेश्चन है पूछ लो, कोई टेंशन है पूछ लो। ठीक है, ये वाली नोट्स आपको कहाँ से मिलेगी, मैंने भेजा था आपको लास्ट टाइम पे, प्लेस ऑफ सप्लाई के टाइम पे भेजा है मैंने ये नोट्स, देखो ऊपर, हाँ इधर प्लेस ऑफ सप्लाई है ऊपर, ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिया सर, एक पेज की नोट्स है, हाँ बस, इसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको उतना ही भेजा है वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, इसमें आपके प्रैक्टिकल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरी भी सॉल्व हो जाएगा। ओके सर नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा या अभी? अभी बचा क्या है, अभी तो क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, यही क्वेश्चन बचे हैं और यही क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, मैंने और भी क्वेश्चन भेजा है, इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई, सी अगर टाइम थोड़ा है हमारे पास तो वी कैन डिस्कस। लुक एट दिस क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख है इसकी, 6 लाख ले लो, फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पराग, पराग कौन है भाई, कौन है पराग, कहाँ लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स बाय खान टू पराग, पराग बायर है, वेरी गुड, पराग बायर है, लेकिन लिखा है ना ऑन बिहाफ ऑफ खान, खत्म। ठीक है, बायर ऑन, नहीं किया सर, मैंने अंदाजा में बायर बोला। सॉरी सॉरी, हाँ रुको, हाँ ये देखो, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ बाय मिस्टर खान टू मिस्टर पराग है ना, तो बाय मिस्टर खान, सप्लाई बाय मिस्टर खान मतलब कौन सप्लाई कर रहा है, खान सप्लाई कर रहा है, किसको, पराग को, तो पराग बायर है। ठीक है, ओके, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पराग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर खान, तो बायर के एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर है तो ले लेंगे, आंख बंद करो ले लो।
Okay, delivery charge paid to Pandu by Mr. Parag on instruction of Khan है तो again on behalf of supplier हो गया. Additional packing charges paid by Khan. अरे खान ने पे किया है तो किसके behalf पे हो, क्या फर्क पड़ता है ना? सप्लायर तो कर रहा है तो भाई सप्लायर बायर के बिहाफ पे करे ना करे उससे लेना देना ही नहीं. ठीक है, तो सारे ही तो इंक्लूड हो गए. 6 लाख प्लस 17 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 15. देखो आ रहा है क्या 6,72,000. यार ये भी मुझे करना पड़ेगा. सर 72 आ गया. Six lakh plus 72. ये भी इजी है. 1 मिनट बाकी है, देखते हैं खत्म होता है कि नहीं. इंक्लूडिंग जीएसटी है, इसका जीएसटी पता करो. कैसे पता करते हैं? 16,64,000 into 100 upon 128. हाँ, अगर ऐसा करोगे तो जीएसटी निकल जाएगा और वैल्यू पता चल जाएगी. ठीक है, अगर जीएसटी मालूम करना है तो 16,64,000 into 28 डिवाइड बाय 128. ठीक है, इससे जीएसटी मिलेगा 3,64,000. वो माइनस करो 16,64 में से, आपको वैल्यू मिल जाएगी अगेन 30 लाख. दो फॉर्मूला है, या तो जीएसटी कैलकुलेट करके माइनस करो या तो 100 डिवाइड बाय 128. बस दोनों फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ, मिल जाएगा 13 lakh. 13 लाख आएगा. अच्छा, अदर देन जीएसटी टैक्सेस से तो लेना है. एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय आशा ऑन बिहाफ ऑफ लेना है. ठीक है, सब्सिडी में सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी इग्नोर कर दो. ठीक है, खत्म. और क्या, कस्टमाइज पैकिंग भी लेंगे क्योंकि स्वरा ने किया है. स्वरा कौन है? भले सेलर हो लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ आशा दिया है. ठीक है, भले बायर हो ऑन बिहाफ ऑफ आशा दिया है. भले सेलर हो, सेलर है तो वैसे भी लेना ही है. सेलर में चेक नहीं करते हम लोग किसके बिहाफ पे, बायर में चेक करते हैं. ठीक है, तो भैया बोलो, वो पढ़ लेंगे अच्छे से. फिर इसके पास कोई डाउट है तो बताएं.